Good morning, good afternoon, and good evening, guys. Welcome to a short and a quick revision of chapter called as dividend policy. Now, this chapter is there as MCQ for CS Executive, new syllabus, that is 2017 syllabus, and it is titled as chapter number 6. So, what are we gonna do is, whatever varieties we have in chapter 6, we are going to solve them, right? We are going to sum up all the formulas in this session in a very quick time, है ना? तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन काम आएगा. जब जब आपको एग्जाम के पहले या जस्ट अ डे प्रायर टू एग्जाम, इफ यू वांट टू रिवाइज डिविडेंड पॉलिसी, you can just see this video and go for exams, and I'm sure you'll be able to crack all the questions on dividend policy. So let's begin guys quickly. शुरू करते हैं, और ये है आपका डिविडेंड पॉलिसी. तो यहां पे हम शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर है हमारा 6, CS एग्जीक्यूटिव लेवल, 2017 सिलेबस, सब्जेक्ट FMSN, एंड इट इज एन MCQ. सो लाइक डिविडेंड पॉलिसी की जब बात करेंगे, सो यू नो, सबसे पहले ऑब्वियसली वील हैव अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. This video is specifically for solving all your queries on practical part of dividend policy. So let's begin. यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि dividend policy में हमें कितने मॉडल हैं. So guys, we have 3 models on which this chapter is based. So we have one is called as Walters model. We have Gordon model, and we have Modigliani-Miller model. We call it as MM approach. Okay, so we have Walter, Gordon and Modigliani-Miller. 3 अप्रोच है. इस 3 अप्रोच के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में इन MCQ पैटर्न. So let us see the concept, the formula and the substitution shortcuts of all the 3. Let's begin. Point number 1, Walters model. So Walters model, if we want to determine the price of the share, अगर हमें शेयर का प्राइस डिटरमाइन करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे? So we do that as P0 is equal to, so we do that P0, प्राइस फाइंड करना है, is equal to D1 plus rate of return upon cost of equity, earning minus dividend per share, the whole upon KE, that is cost of equity. This is the formula what we use in Walters model. ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट तो मैंने रेगुलर क्लास में कराया है. ये क्विक रिवीजन है, तो मैं फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा. कमिंग टू गॉर्डन मॉडल. गॉर्डन मॉडल में इफ यू वांट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर, इट इज E into 1 minus B upon KE minus G. That is the formula of Gordon model. And coming to Modigliani-Miller, in Modigliani-Miller, if you want to determine the price, it is price of the share is D1 plus P1 upon 1 plus KE. So these are the 3 formulas on your screen, guys, on Walter, on Gordon and Modigliani-Miller. आपको ये learn करना है, right? Learn करना है exam point of view. These are the only 3 formulas which are to be learned in dividend policy. तीनों मॉडल का फॉर्मूला ये है ना. अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन. गाइस, अभी इनको सब्स्टिट्यूशन में मैं लूंगा. अब देखते हैं मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. सो यहां पे लेट्स बिगिन विथ वॉल्टर मॉडल. तो पार्ट 1 में मैंने ले लिया वॉल्टर मॉडल. सो वॉल्टर मॉडल में दे विल गिव मी डी, डिविडेंड पर शेयर. ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, कभी कभी ऐसा भी होगा कि डी नहीं दिया होगा. तो क्या करेंगे? रिमेंबर वन थिंग, आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए टू गेट द अर्निंग पर शेयर, ई. सपोज अर्निंग पर शेयर इज ₹10. क्वेश्चन इज, अगर अर्निंग भी न दिया हो तो यू मे आस्क मी दैट क्वेश्चन कि चलो एग्जाम में सर अर्निंग नहीं है, तो हम क्या ढूंढेंगे? तो पहले आप ई ढूंढेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अर्निंग पर शेयर. कैसे मिलेगा अर्निंग पर शेयर? टोटल अर्निंग्स, I repeat, total earnings divided by number of equity shares. Total earnings
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो हमें ईपीएस मिलेगा और वही ईपीएस नथिंग बट हमारा ई होगा। वेरी क्लियर। सो या तो ई डायरेक्टली है या तो हम ईपीएस यूज करके फाइंड करेंगे। दूसरा वी वांट डी, राइट, वी वांट डी, डिविडेंड पर शेयर। सो पहले तो हो सकता है कि डीपीएस डायरेक्टली ना दिया हो। इफ इट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, again you will use the almost the same concept, that is total dividend divided by number of equity shares। और अगर इससे ना मिले तो sometimes they will give you the dividend payout ratio। तो सपोज उन्होंने बोला सर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, सो लेट्स प्रिज्यूम डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। ओके, सो डिविडेंड पे आउट रेशियो का 60% है तो लेट्स प्रिज्यूम अर्निंग का 60% इज 6 रुपीज ऑब्वियसली। सो डी मिल गया मुझे, तो आई हैव ई, आई हैव डी। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट रेट ऑफ रिटर्न। ओके, आई वांट रेट ऑफ रिटर्न। सो सपोज रेट ऑफ रिटर्न इज से 15%, and I'm taking all these hypothetical figures right now to explain the substitution. But suppose rate of return भी ना हो तो you will use the formula for rate of return. What is the formula? It is nothing but earnings divided by capital employed into 100. That is nothing but rate of return. And finally they'll give you KE. Say KE is 10%. Cost of equity is say 10%. अगर KE ना दिया हो तो यू फाइंड बाय KE इज इक्वल टू 1 अपॉन द प्राइस अर्निंग रेशियो। तो दे मस्ट हैव गिवन यू PE रेशियो, उन्होंने आपको PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया होगा अगर डायरेक्टली KE नहीं दिया है। ओके, और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है KE के लिए तो आपके पास KE के लिए फॉर्मूला दिया होगा जो आप अप्लाई करेंगे सब्सटीट्यूट करने के लिए, बट इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। D1 अपॉन P0 प्लस G। बेसिकली दे विल इन डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर वो यही वाला पूछेंगे, KE इज इक्वल टू 1 अपॉन PE। एंड नाउ यू हैव E, D, R एंड KE, यू हैव ऑल द 4 थिंग्स। नाउ कम्स टू सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के पहले रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा याद रखना, वॉल्टर मॉडल जो होता है वहां पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, यहां पे R KE से ज्यादा है, R is greater than KE. Therefore, remember my optimum dividend payout ratio. I repeat, my optimum. See, R is 15%, KE is 10%. So my optimum dividend payout ratio should be equal to 0%. Because यहाँ पे इकोनॉमी बूम में है। अगर इकोनॉमी बूम में है तो ऑब्वियसली कंपनी पैसा रिटेन करेगी, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये ऑप्टिमम डीपी रेशियो 0 है, मतलब अगर हमने डिविडेंड जितना कम से कम रखा होता प्राइस उतनी ऑप्टिमाइज होगी। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस डेटा इन द फॉर्मूला। सो यहां पे माय D1 इज 6, my R is 0.15, this is 0.10, this is 10 minus 6 upon 0.10. Now you can solve this very easily in the calculator. This is nothing but 6 plus, कैलसी में करते वक्त पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 minus 6 is nothing but 4 and 0.15 divided by 0.1. I repeat 0.15. तो आप कैसे करेंगे कैलसी में? Let me show you. So I open the calculator in front of you. मैं क्या कर रहा हूं 0.15 डिवाइड बाय 0.10, सो दैट इज नथिंग बट 1.5 इंटू 4। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो गेट 6 RHS का, प्लस यू विल ऐड द डिविडेंड, योर डिविडेंड इज 6 अगेन, सो यू गेट 12 एंड दैट डिवाइड बाय 0.10। आंसर इज 120 रुपीज एंड दैट इज हाउ। आपको ये सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, you get 120 rupees. This is the way you will solve Volter model. तो ये था वॉल्टर में जितना ऑप्शंस आ सकता था वो मैंने एक ही प्रॉब्लम लिया, मास्टर प्रॉब्लम, एंड मैंने वॉल्टर को एक ही प्रॉब्लम में आपको सम अप करके दे दिया। So guys, if you can revise this video, if you can revise this problem, I am sure in exam once Volter model comes, you will be able to crack it. Let's go to the next one, Gordon model.
आगे बढ़ता हूं मैं आपके पास गॉर्डन मॉडल के लिए। तो गॉर्डन मॉडल में हमने देखा, अगेन वी आर सपोज टू फाइंड द करंट प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज P0. So here obviously E has to be given, that is again let's take ₹10. Now comes B. B is nothing but also called as retention ratio. I repeat, B is called as retention ratio. कि अगर मैं 60% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मेरा रिटेंशन कितना होगा 40%. सो लास्ट सम का ही अगर मैं डेटा ले रहा हूं तो माई रिटेंशन इज 40%. सो मुझे मालूम पड़ गया दिस इज नथिंग बट 0.40, क्योंकि लास्ट सम में मैंने दिया था 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो. सो रिटेंशन इज 40%. नाउ लेट्स गो फर्दर. यहां पे भी मुझे KE चाहिए, विच आई ऑलरेडी टेकन एज 0.10. I already have my B, I already have my R, which is 0.15. I have all the data from the last question. Now I just have to substitute this data in the Gordon model. जैसे ही मैं Gordon में आया, मैंने देखा 10 into 1 minus 0.4. KE is 0.10 minus what is G? So here an interesting concept comes. Guys, जब G फाइंड करना है तो G is nothing but B into R. उसके ऊपर भी काफी बार MCQ आ गया है. एग्जाम में काफी बार MCQ आया है, in which you are only supposed to find the growth rate. That is B, the retention ratio into the rate of return, B into R. So यहाँ पे if I do B into R, my B is 0.4 and my R is 0.15. So again when I use calculator, 0.4 into 0.15, 0.40 into 0.15, I get it as 0.06. So my growth rate is nothing but 6%. So this is 6%. अब मैं इसको वहां पे डाल रहा हूं 0.10 divided by 0.06. Again bracket open, 1 minus 0.4 is what? 0.6 into 10 is 6 rupees upon 0.04. तो to conclude this, आप वैल्यू कैसे निकालोगे? This is 6 divided by 0.04 and you get 150 rupees, the price as per Gordon model. This was Gordon. I repeat, this was Gordon model. So मैंने वॉल्टर क्विकली रिवाइज किया, गॉर्डन अपने सारे ऑप्शंस के साथ रिवाइज किया, और लास्ट अब मैं आपको मोतिलानी मिलर रिवाइज करके दे रहा हूं गाइस. आई एम टेलिंग यू वेरी क्विकली वी आर रिवाइजिंग डिविडेंड पॉलिसी. जब आपका पेपर होगा नेक्स्ट डे तो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू रिफर टू एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग टॉट. तो आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और ये वीडियो देख के आप बिंदास डिविडेंड पॉलिसी अटेम्प्ट करेंगे, एंड आई एम डेड श्योर, 100% श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा. यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन डिविडेंड पॉलिसी. सो गाइस, लास्ट, नॉट टू वेस्ट मच टाइम, एग्जाम के एक टाइम पे नो टाइम पास, सीधा पढ़ाई. सो मोतिलानी मिलर मॉडल, दिस इज MM अप्रोच. दिस इज MM अप्रोच. सो MM अप्रोच में देखते हैं. MM अप्रोच में हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेदर द डिविडेंड इज पेड और वेदर द डिविडेंड इज नॉट पेड. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू इज वेरी अटेंटिव एंड आपको ये याद भी होगा कॉन्सेप्ट, डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड. ओके, इफ डिविडेंड इज पेड, लेट्स प्रिज्यूम द डिविडेंड व्हाट इज पेड इज 6 rupees. And if dividend is not paid, obviously dividend is 0 rupees. And my formula is P0. So let's presume यहां पे मैंने P0 ले लिया 100. And I'm supposed to find the expected price of the share. My KE is still 10%. My KE is still 10%. So my formula is P0 is equal to D1 plus P1 upon 1 plus KE. यहां पे भी D1 is 0 plus P1 1 plus KE. And now if you notice, this is 1.1 into 100 is 110 is equal to 6 plus P1. P1 will give you 104. And यहाँ पे P1 is equal to 110. टेक्निकली दोनों में सिर्फ 6 रुपए का डिफरेंस होगा और वो 6 रुपया सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं. सो दोनों का आंसर में हमेशा जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड. ये था मोतिलानी मिलर अप्रोच. पर मोतिलानी मिलर में वो लोग एक स्टेप
आगे जाते हैं। वो लोग पूछते हैं मोदलानी मिलर में कि फाइंड एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एट द न्यू प्राइस, कि मेरे को अगर कंपनी में पैसा इकट्ठा करना है तो मुझे किस प्राइस पे शेयर इश्यू करना चाहिए। तो उसके लिए यू यूज द फॉर्मूला I माइनस E माइनस ND1 द होल अपॉन T1। इसमें भी whether dividend is paid, dividend is not paid. Let's presume your I is 10 lakh. Let's presume इन्वेस्टमेंट दिया है 10 लाख, अर्निंग दिया है आपको 4 लाख, अर्निंग दिया है आपको 4 लाख। 6 रुपया डिविडेंड आपके पास, वो तो आपको पता है, 6 रुपीज इज योर डिविडेंड, अभी अभी किया है। लेट्स प्रिज्यूम कि आपके पास 50,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? सो लेट मी ऑल्सो राइट डाउन योर नंबर ऑफ शेयर्स आर 50,000। सो 50,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज विल गिव यू 3 लाख अपॉन P1 कौन सा लेंगे? तो P1 वो लेंगे जो डिविडेंड इज पेड वाला है, और जब यही चीज यहां पे करेंगे तो इट विल बी 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 0 अपॉन 110, you will get the new shares. So here 4 minus 3 is 1, 10 minus 1 is 9, so it is 9 lakh divided by 104, 6 lakh divided by 110. So यहाँ पे let me again use calculator to get you the final answer. 9 lakh divided by 104 gives me 8653. I repeat, 8653. Point, don't ignore the decimal, 0.846 number of shares. And what is 6 lakh divided by 110? Guys, 6 lakhs divided by 110 will give you 5454.54 recurring number of shares. That's the answer. ये for second type of MCQ in the Motilani-Miller model. And let's do the last topic. Last topic, and with this we finish this video on dividend policy, which was a quick revision video. I'm sure all of you will like the video and subscribe to Study Circle Mumbai if you haven't subscribed till now. So guys, शुरू करते हैं। Last concept, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द शेयर। सो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर? द फॉर्मूला इज ND1 प्लस N प्लस डेल्टा N इंटू P1 माइनस I प्लस E माइनस ND1 दरनमत अपॉन 1 प्लस KE। लेट्स डू दिस फॉर इफ डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड पे हुआ है तो आपका ND1 आपको पता है 3 लाख है। कैसे मालूम? उसके ऊपर से आया 50,000 शेयर्स इंटू 6 प्लस ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? तो ओरिजिनल शेयर्स आपके पास थे 50,000 प्लस नए शेयर्स ऊपर से आएंगे 8653 वाला फिगर। हाँ, ओके, प्लस 8653.84615 डॉट 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 पूरा डिजिट 12 डिजिट तक लिखना है। Into P1 is 104 minus I plus E minus ND1 1 plus KE. So this 3 lakh and this 3 lakh goes cancel हो गया। अब मुझे वैल्यू फाइंड करना है। I can do this in calculator. It's a simple one. So let me do this. This is 50,000 shares plus 8653.8 4615 384 6154 ये पूरे 12 डिजिट तक लेना है इंटू 104 कर दिया 61 लाख एग्जैक्ट फिगर आएगा। उसमें से मुझे क्या करना है? 61 लाख में से मुझे 10 लाख माइनस करना है प्लस 4 लाख ऐड करना है। आई गेट 55 लाख डिवाइड बाय 1.101, that's 50 lakh. So my value of the share is 50 lakh. My value of the share is 50 lakh. If dividend is paid. If dividend is paid. अगर dividend pay नहीं हुआ है तो बॉस use the same formula. अगर dividend pay नहीं हुआ है तो 0 हो गया प्लस 50,000। अच्छा, नेक्स्ट वाला शेयर्स कितने आए थे?
5454 point recurring 5454 into 110 minus 10 lakh plus 4 lakh minus 0 upon 1 plus KE. So let's do this in Calci. Let's do this. This is 50,000 plus 5454.54545454 into 110, that is 61 lakh. I repeat, 61 lakh minus 10 lakh plus 4 lakh divided by 1.10, and you'll be shocked and surprised to see the value of the firm remains the same. That is the concept of Modgliani-Miller. Modgliani-Miller ने यही तो बोला है that whether you pay dividend or whether you don't pay dividend, value of the firm will remain the same. So guys, this was a quick revision of the entire dividend policy, Walter, Gordon and Modgliani-Miller, with all possible formulas, with all possible varieties. So guys, ये 20-21 minutes का वीडियो है. I'm sure you will not miss a single second of this video, है ना? तो ये बस 20 मिनट आप करो और डिविडेंड पॉलिसी के मार्क्स आपके होंगे. So that's all from my side, guys. Love you all. I hope you are studying well for the examinations, and this video will always be useful for every attempt for dividend policy, right? So dividend policy guys CA इंटर में भी है, right? CS executive में भी है. We have this for BBA as well. We have for MCOM as well. So every student prior to exam can refer to this video on dividend policy. That's all from my side, and thank you all for listening to us and always appreciating our efforts, right? So if you haven't liked this video, please like it, subscribe to our channel Study Circle Mumbai. God bless you all and best of luck for your exams.